We are conducting one mock interview today, and we have Ritu with us. She is connecting from Ghaziabad. सो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो मुझे बताइए कौन से भी ऐसे 5 इंपॉर्टेंट प्लगइन बताइए जो आपने आज तक वर्डप्रेस में यूज़ किया और जो हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। You don't know the challenges that will come when you will start getting backlinks. सर अभी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम है, जस्ट वी आर गोइंग टू theoretical part. Why any business, or what type of business actually? What type of business should focus on localism? We are conducting one mock interview today, and we have Ritu with us. She is connecting from Ghaziabad, and साथ में हमारे हैं आदित्य सर. So Aditya sir is also going to conduct and he will also ask some questions. Ritu. So very good morning. Let's start with Good your morning, sir. Good resume morning, sir. first. I'm just going to stage the resume. Yes, Ritu, please tell us about yourself. Good morning, everyone. My name is Ritu. Sir, actually, I am after a long break about past 18 years. I am taking my role back because I've dedicated my last 17, 18 years to my family, to nurturing them, my kids. So now they are grown up. So it's time to me to get back on my previous roles. So I joined the Stage Academy to upskill my things and professional things, and go on with the marketing, digital marketing. Okay. And when you took break, after that you started with digital marketing, but I can see your resume. You are working in software testing, I suppose. Yes, sir. You are also you got training for that. So why this switch? Actually, sir, right now I'm seeing that everything is digital. At that time, past 15, 16 years, the digital things is much less. Now, everybody, even kids, a small kid is watching videos on mobile, TV, and everything. So it's right time to decide that digital marketing. For marketing, we can go digitally to reach to our people. In bulk, you can say, lot more ways. So it's a good time to switch. Yeah. Yeah. Okay. So even software testing. So अगर आप उस टाइम के बारे में थोड़ा बता सकें, how was your work and how you were as a software tester, कैसा सिनेरियो होता था, किस टाइप के situations आपने पहले handle किए हैं? सर एक्चुअली टेस्टिंग मैंने मैनुअल ही की है. आई डिड माई ऑल द प्रोजेक्ट्स विद मैनुअल टेस्टिंग, टेस्ट रिपोर्ट्स बना के एंड उनको इम्प्लीमेंट करके उनके लाइक टेस्टिंग मैनुअली करी है सर मैंने. सारा टेस्ट केसेस बना के, टेस्ट डेटास बना के, उसको एग्जीक्यूट करके, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके, लाइक मेरे जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो फॉर अ स्मॉल organization tha, like 15 or 14 people were there. So my projects were for that organization only. So the things, the testing were done manually only. Okay. So उनका in-house ही सॉफ्टवेयर हुआ करता था उसकी टेस्टिंग में आपसे जो कंपनी? Yes sir, yes sir, yes sir. एंड डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या-क्या सीखा है? कौन-कौन से मॉड्यूल्स यू आर कंफर्टेबल विद? Sir, till date, I'm comfortable with local SEO, website SEO, and website development or Google Ads. These all 4-5 topics I'm comfortable with. How about web analytics? Yes, Google. Fine. And when you want a job, तो आप किस में चाहेंगे फोकस्ड रहे? वेबसाइट डिजाइनिंग साइड या फिर
रनिंग एड्स, PPC कैंपेन्स, कौन से साइड में आपको जॉब ज़्यादा प्रेफर्ड? सब प्रेफर्ड मुझे डेवलपमेंट भी चलेगा एंड एसईओ इज आल्सो गुड एंड गूगल एड्स इज आल्सो कंफर्टेबल फॉर मी. ओके, सो रितु, कैन यू टेल मी कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है nowadays, द लेटेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इवन आफ्टर AI इज देयर, सो और जनरेटिव AI वी कैन से, कैसे चेंज हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, ऐसा अब आप क्या करेंगी जो पहले वर्क नहीं करता था और अब वर्क करेगा? कैन यू टेल अस अबाउट दैट इन एसईओ? सर एसईओ इज एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है, हमारी वेबसाइट है, उसको रैंकिंग करने के लिए वी डू द एसईओ. सो अभी राइट नाउ वी कैन हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए वी कैन डू एसईओ. सर राइट, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप मुझे एक बार इलैबोरेट करेंगे योर श्योर, क्वेश्चन? श्योर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे गूगल इज सिंस 1998, राइट? एंड देन बाकी भी सर्च इंजन्स रहे हैं। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का जो तरीका था, जो टेक्निक्स थी, वो टाइम के साथ ऑफ कोर्स चेंज हुई हैं। सो ऐसी कौन सी टेक्निक्स थी जो अब इररिलेवेंट हो गई, और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो अब नई आई हैं एंड दोज आर रेलेवेंट, मोर रेलेवेंट, जिससे कि हम जल्दी रैंकिंग कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन 2024। कैसा ऐसा ऐसा क्या करिएगा आप जिससे कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी जो पहले लोग नहीं करते? दैट्स द क्वेश्चन। सर लाइक पहले जो गूगल की पॉलिसीज थी वो अब बहुत चेंज हुई है. लाइक बहुत पहले बहुत इजी था गूगल में अपना रैंकिंग, अपने बिजनेस को रैंक करना. लाइक कीवर्ड स्टफिंग लोग करते थे, अपना जो कीवर्ड है उसको बार बार प्लेस करते थे. बट अब टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ है, गूगल ने अपनी अपडेट्स निकाली हैं एंड उसने बहुत सारी अपडेट्स निकाल के लोगों को बता दिया है कि आप अपने ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा लिमिट करिए. एंड आई कैन से कि ऑप्टिमाइजेशन आपका जेन्युइन होना चाहिए. आप जो भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे वो ऑथेंटिक होना चाहिए. लाइक ठीक है, तो वो ये अपनी गूगल अपडेट्स के थ्रू आपको बताता रहता है. सो कैन यू नेम एनी गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स जो पहले गूगल लाया है, मेजर अपडेट्स में से? यू कैन नेम। सर पांडा लाया था 2010 में. देन पेंगुइन था. और सर एक मोबाइल अपडेट आया था, एक पिजन अपडेट आया था. So there are lots many more, but right now 4 or 5. Yes. So what was there in Panda update? So पैंडा में था कि आपका कीवर्ड जो है वो की स्टफ नहीं होना चाहिए. लाइक रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कीवर्ड्स का. आप अगेन एंड अगेन यूज ना करें उस कीवर्ड को. Okay, so it was related to content. Yes. All right. Mobile devices आने के बाद how SEO is changing? सर मोबाइल के आने के बाद हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव, हमें वो देखना चाहिए अपनी वेबसाइट्स की मोबाइल रिस्पॉन्सिव है. साथ में उसका ऑप्टिमाइजेशन की लाइक वेबसाइट डेस्कटॉप पे कैसे खुल रहा है और इसमें कैसे खुल रहा है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, तो वो भी फर्क पड़ता है. तो अगर मैं आपको एक वेबसाइट दूं जो पहले से बनी हुई है, कैन यू चेंज इट इनटू रेस्पॉन्सिव वेबसाइट? सब हो सकता है. कैसे करिएगा? सर चेंज क्या करना है सर, उसको वर्डप्रेस पे, लाइक हमने जो अभी तक सीखा है इन वर्डप्रेस में, हम जब वेबसाइट डेवलप करते हैं तो वी चेक दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिव, मतलब टैबलेट में रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है. उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वो सेटिंग सारी चेंज करते हैं. तो अगर नॉन वर्डप्रेस साइट को आपको वर्डप्रेस पे लाना हो, व्हाट विल बी द प्रोसेस? सो मे बी इंपोर्ट करेंगे, दैट आई डोंट नो. Okay. So have you tried designing any non-WordPress site into WordPress? No sir, not yet. Have you designed any website? सर अपनी बनानी है बट अभी इट्स टेकिंग टाइम सर. अभी क्लासेस चल रही है तो दैट्स व्हाई. Okay. Yes, Aditya sir. Aditya sir is here.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रितु जी। यस रितु जी, सो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो मुझे पता है कौन से भी ऐसे 5 इम्पोर्टेंट प्लगइन बताइए जो आपने आज तक वर्डप्रेस में यूज़ किया और जो हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। So 5 plugins, 5 most important plugins are, we can say, SSL, really SSL safe certificate, और SEO plugin हो जाएगा, and all-in-one migration plugin we can use that, and form के लिए we can use form plugin, और table of content we can use, table of content के लिए we can use the plugin. और पेज बिल्डर कौन सा यूज़ करोगे आप? एनीवन It's प्लगइन? Elementor sir. एलिमेंट। और एसईओ के Yes. लिए कौन-कौन से प्लगइन यूज़ किए आपने अभी तक? Sir, rank math use करा है, but all-in-one SEO is also there and Yoast is also there. ओके, सो मुझे बताइए वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट एडिटर कौन सा होता है? पेज बिल्डर होता है सर उसका, हाँ, कौन सा पेज बिल्डर, उसका नाम क्या होता है? ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर, ओके, ठीक। एसईओ में मुझे बताइए ऑफ पेज एसईओ के ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बताइए जिससे हम वेबसाइट को जल्दी रैंक कर सकते हैं। सर ऑफ पेज के लिए हमें डू फॉलोज बैकलिंक्स चाहिए होते हैं, सो वो हम 4-5 वेज हैं जिनसे हम वो ले सकते हैं। लाइक लॉन्ग कंटेंट्स लिख सकते हैं, लॉन्ग ब्लॉग्स लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट में, नेगेटिव आर्टिकल्स लिख सकते हैं, कुछ अपने कमेंट सबमिट कर सकते हैं वेबसाइट्स पे, और .edu वेबसाइट्स होती हैं उनसे अपने हम बैकलिंक ले सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक? सर डू फॉलो बैकलिंक्स आर दोज बैकलिंक्स जहाँ से हमें एसईओ का प्रॉफिट, हमें कुछ उसका रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम दोज वेबसाइट्स, और नो फॉलो बैकलिंक्स लिंक्स होते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स हमें नो फॉलो भी देती हैं, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द बैकलिंक बट दे डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट ऑफ देयर एसईओ। ओके, सो मुझे अभी बताइए कि जैसे एक वेबसाइट ने हमें बैकलिंक दे दी हमारी वेबसाइट को, बट मुझे वो बैकलिंक नलीफाई करनी है। मुझे बताना है गूगल ओके की ये बैकलिंक मत कंसिडर करो, तो आप कौन सा टूल यूज़ करके ये कर सकते हो और कैसे करोगे? सर इसके लिए डिसवाव टूल होता है, तो विल टेक द, मतलब हम नोटपैड में एक लिस्ट, वो बैकलिंक का लिस्ट बना सकते हैं, एंड दैट वी कैन अपलोड टू द गूगल सर्च कंसोल में, वो डिसवाव टूल में वो लिस्ट, दैट टेक्स्ट फाइल वी कैन अपलोड दैट, सो गूगल विल टेक दोज दैट, रीड दैट टेक्स्ट फाइल कि इन बैकलिंक्स को नलिफाई कर दो। ओके, यस। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आपने किया, आपने किसी वेबसाइट के लिए कोई भी एक बैकलिंक कभी जनरेट की है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली नहीं सर, नॉट येट। So you don't know the challenges that will come when you will start getting backlinks. सर अभी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम है, जस्ट वी आर गोइंग थ्रू theoretical part only. Okay. Uh, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा यू सेड वेब एनालिटिक्स आपने किया हुआ है ना? वेब एनालिटिक्स के टूल्स मुझे बताइए, कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स जो आप यूज करेंगे? सर सिमिलर वेब हो गया, सेम रश से भी वी कैन गेट द डेटा, और GA4 फॉर आवर वेबसाइट, और यस सर। So how you implement Google Analytics on your website? What's the process? सर हम प्रॉपर्टी अपनी ऐड करते हैं इसमें, अपनी वेबसाइट ऐड करते हैं प्रॉपर्टी, देन फिर गूगल हमें उस वेबसाइट को अपना वो करके देन विल So if analysis the property of that so property add किया and then you will get a piece of code. code, and then we'll place that code on our website head part. How you will put that? सर वो हम HFCM plugin होता है, and that snippet code will paste अपना वहाँ पे। So have you tried this plugin ever? हाँ सर, एक वेबसाइट बनाई थी डॉक्यूमेंटर करके, उसमें करा था कोडिंग। Use it. यस। So web analytics अगर हम check कर रहे हैं, or anybody is checking any website analytics, tell me 5 KPIs जो important numbers हैं कि
these are really important numbers when it comes to any website. 5 KPIs सब पेज व्यू मेरा होना चाहिए, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कैन से मैं अपने इवेंट्स पे नज़र रख सकती हूँ, एंड मेरा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, मेरा ऑडियंस कहाँ से आ रही है, आई कैन कीप ट्रैक ऑफ दैट। और कैन से क्या ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, मेरा टेक्निकल पार्ट आल्सो वी कैन कवर इन जीए। और so So, what is bounce rate and why is it useful KPI for any? yes, so bounce rate is also important KPI। so bounce rate होता है कि जब कितनी टाइम पीरियड पे यूज़र मेरे पेज पे रह के निकल जा रहा है, कितनी देर उसने मेरा पेज देखा एंड मेरी वेबसाइट पे रुका और देन चला गया, दैट इज द बाउंस रेट। Then it shouldn't be bounce time. I mean, if it is a time, you are saying it is related to duration. So, तो नाम उसका कुछ टाइम से रिलेटेड होना चाहिए था. सर ऑल यूजर्स, मतलब कितना कितना परसेंटेज यूजर मेरा निकल के कितना स्टे कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर पेज, और दैट इज द बाउंस रेट। स्टे कर रहा है या जा रहा है? जा रहा है सर, कितनी देर स्टे करके चला गया, लाइक अगर 5 सेकेंड 3 सेकेंड, किसी पेज तो में उस 15 केस में सेकेंड रहते हैं। अगर कोई 2 सेकंड स्टे किया और चला गया और कोई Yes. 4 सेकंड स्टे किया और चला गया, तो आप किसको बाउंस पकड़ेंगे? 2 सेकेंड वाले को, Is, तो is वो there जल्दी any चला rule? गया, वो जल्दी चला गया, दैट्स व्हाई उसने टाइम कम स्पेंड किया मेरी वेबसाइट पे। और 3 सेकंड वाले का क्या होगा? सो सेम 3 सेकेंड आल्सो। So that is also bounce. यस, मतलब 4 सेकंड वाले मैक्सिमम सब मेरे पेज पे उसको, मेरी वेबसाइट पे उसको जितना मतलब टाइम बिताना चाहिए इज गुड। अगर वो जल्दी जा रहा है दैट इज द बाउंस रेट, कि मेरे कस्टमर मेरे यूजर्स कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं मेरे पेज को विजिट करके। is it related to time or is it related to number of pages that the person visits? नंबर ऑफ पेजेस सर। Time of all right. So ideally, say if I am running e-commerce, what should be my bounce rate? So bounce rate should be around 60, 50, 60%. 50-60%. Now coming to the local SEO, you said local SEO you are more comfortable with. Why any business or what type of business actually? What type of business should focus on local SEO? So any business, like if a doctor is there, doctor's clinic is there outside my locality, or grocery shop, or any shop, like any medical shop, any local shop is there, it needs local SEO. It's important for their business. Okay. So apart from Google, what other places are there where you will put effort for local SEO? For local SEO, Yes. सर मैं अपनी लोकल बिजनेस को, जो साइटेशन साइट्स होती हैं, जो डिफरेंट साइट्स होती हैं, उन पे अपने लोकल बिजनेस को रजिस्टर करना है। मुझे 2 एग्जांपल दीजिए. से लाइक सुलेखा हो गया, येलो पेजेस हो गया। ये सब पे फ्री लिस्टिंग हो जाएगी? सर किसी पे लिस्टिंग फ्री हो जाती है, बट रिव्यूज वगैरह आई थिंक देने के लिए वी हैव टू गेट पेड प्लान्स। लिस्टिंग फ्री पे हो जाती है। यस आयत सर. यस रितु जी। सो अभी हम लोकल बिजनेस पे लिस्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं वेरिफिकेशंस में, वीडियो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो मुझे बताइए, वीडियो वेरिफिकेशन करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम वेरीफाई करेंगे? सर वीडियो वेरिफिकेशन करते समय लाइक हमें अपना जो लोकल बिजनेस जो प्लेस है उसमें हमारा बैनर, जिसमें कि नेम,
हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर व्हिच इज़ कॉल्ड नैप, ये कहीं बैनर में डिफ़ाइन हो तो दैट विल बी गुड फॉर अस। और वीडियो वेरिफिकेशन हम अपना अगर स्टोर का पूरा एक वीडियो अच्छे से बना के जहाँ पे कि मेरे बैनर्स लगे हैं और मेरे बिज़नेस का नाम वगैरह सब दिया हुआ है विद एड्रेस, तो वो जल्दी गूगल अप्रूव करेगा। ओके, मुझे बताइए लोकल एसईओ में हम जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो कौन कौन सा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कैसे हम रैंकिंग ऊपर उठाएंगे बिजनेस के लिए? सर गूगल लोकल बिजनेस में एक तो सर मुझे अपने बिजनेस को लोकली सब जगह सारे प्लेटफॉर्म्स में लिस्ट करना पड़ेगा। और अपना जब भी मैं जब गूगल माय बिजनेस में अपने बिजनेस को रजिस्टर कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे अपना डिस्क्रिप्शन लिखना, इट्स विद कीवर्ड्स जो भी मेरा बिजनेस बिलोंग करता है और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको लेके मैं अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करूँ विद अराउंड 20-30 फोटोज़ विद जियो टैग, जिसमें कि जियो टैग हो लोकेशन का। और रिव्यूज़ मेरे होने चाहिए कि मेरे पास अगर 15-20 रिव्यूज़ हैं तो दैट विल बी गुड फॉर माय लोकल बिजनेस। ओके, सो आपने एसईओ में सुना होगा ब्लैक हैट एसईओ एंड व्हाइट हैट एसईओ। क्या होता है ब्लैक हैट एसईओ एंड व्हाइट हैट एसईओ? सो व्हाइट हेड होता है लाइक वी आर गोइंग थ्रू द पॉलिसीज, एंड ब्लैक हेड इज वी आर नॉट गलत बात लेना। मुझे एक टेक्निक बताइए लोकल एसईओ में जो ब्लैक हैट एसईओ को रेफर करती है। सर आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, सॉरी। ओके, सो आपने बताया था गूगल एड्स, आपका इंटरेस्ट है गूगल एड्स में भी, राइट? यस यस सो सर। गूगल एड्स में मुझे बताया कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है गूगल एड्स के सबसे पहले? सर ऑब्जेक्टिव है लीड हो गया, सेल्स हो गया, वेबसाइट ट्रैफिक हो गया, एंड ऐप ऐप के लिए हो गया, एंड और आई कैन चलिए। ओके, गूगल एड्स में जो बिडिंग रहता है, बिडिंग कैसे वर्क करता है? बिडिंग गूगल कैसे डिसाइड करता है कि किसको ऊपर दिखा है, कौन सा ऐड ऊपर दिखा है, कौन सा ऐड नीचे दिखा है? सर अगर मेरा बिडिंग अमाउंट अच्छा है, लाइक कॉस्ट मेरे बिडिंग की, मेरा प्राइस डेली बजट अच्छा है तो वो मेरी रैंकिंग करेगा हाई। तो उससे रैंकिंग हाई हो जाएगी। सर मतलब और भी फैक्टर्स हैं बट बिडिंग फॉर बिडिंग मुझे कौन से अमाउंट फैक्टर्स अपना एड बजट लेना पड़ेगा सर। फैक्टर्स कौन से हैं वही इज आस्किंग, एनी आइडिया? सर बज एड को ऊपर दिखाने के लिए सर मेरा एड अच्छा होना चाहिए, लाइक मेरे एड का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, मेरे एड्स में जो मेरा स्ट्रक्चर है ऐड का वो प्रॉपर होना चाहिए। एक मिनट सर, मेरे ऐड का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसमें मैंने यूआरएल डिफाइन किया हो, फाइनल यूआरएल अच्छा हो, उसके डिस्क्रिप्शंस अच्छे हों, जिसमें कि कीवर्ड इम्पोज्ड हो, और लैंडिंग यूआरएल हो, अ, और उसमें कॉल आउट्स हो, असेट्स हो, सो ऑल दीज कैन रैंक। सो अगर ये सब सही है एंड माय बिडिंग स्ट्रेटजी इज रॉन्ग, तो ये सही काम करेंगी? नहीं सर। सो कैन यू टेल अस अबाउट बिडिंग स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी हैं? सो बिडिंग मैनुअल होती है एंड ऑटो होती है, राइट? मैनुअल तो गूगल सजेस्ट करता है दैट अगर इफ यू वांट टू टिक दैट कि गूगल डिसाइड करे दैट, तो दैट इज मैनुअल। एंड बिडिंग स्ट्रैटेजी में ऑटो में होता है मैक्सिमम क्लिक, मैक्सिमम कन्वर्जन, देन मैक्सिमाइज, एक इम्प्रेशन होता है सर, मैक्सिमम इम्प्रेशन। एक मैं मिस कर रही हूँ सर, वन मोर इज देयर। सो ऑटो वाला गूगल डिसाइड करेगा या मैनुअल वाला गूगल डिसाइड सब करेगा? मैनुअल गूगल डिसाइड करेगा एंड देन ऑटो वी हैव टू डिसाइड कि हम कौन सा प्रेफर करना चाहते हैं। इट्स मैक्सिमम क्लिक, देन maximum impression, then maximize conversion, and one more is there.
Yes, yes, Aditya sir, continue. यस रितु जी। सो आपने बताया पहले कि एसेट हम यूज करेंगे, मुझे बताइए सर्च एड में कौन कौन से टाइप के एसेट्स हैं? सर सर्च टाइप में एसेट्स होते हैं, कॉल आउट होता है, और प्राइस का आप यू कैन यूज द प्राइस एसेट, कॉल आउट हो गया। सो ओके। सो सर्च एड में हेडलाइन की लिंक कितनी रहती है 30 कैरेक्टर्स, और डिस्क्रिप्शन की? 90। आपने देखा होगा जब आप सर्च एड बनाओगे तो आपको दो एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले पाथ का। क्या होता है ये डिस्प्ले पाथ? सर डिस्प्ले पाथ वो होता है जो हमारे गूगल एड में वहाँ पे डिस्प्ले करता है, दैट इज द डिस्प्ले। कहाँ पे डिस्प्ले करेगा? सर हेडिंग से ऊपर, डिस्क्रिप्शन से ऊपर डिस्प्ले पाथ दिखता है। ओके, यस सर। Yes, Ritu. So, as you have already worked, then you took a break. Now you have changed the field, and now you are going to join a digital marketing company. So, how do you see yourself in next 5 years? What do you want to achieve? या फिर हो सकता है आप एक साल में फिर से मन बदल लें, किसी और फील्ड में चले जाएं. What is your plan? नहीं सर, मन बदलने वाला इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि आफ्टर 17 इयर्स मुझे नहीं लगा कि आई बेटर गो विद द टेस्टिंग पार्ट, क्योंकि अभी राइट नाउ अब मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं इन दैट टेस्टिंग फील्ड, राइट, क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो चुकी हैं। सो और उसका स्कोप आई डोंट थिंक सो मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करती देन मुझे वो बात लेने में बहुत टाइम लगता। सो आई चेंज माई फील्ड इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे इसमें दिखा कि स्कोप बहुत है राइट नाउ। तो दैट्स व्हाई आई चेंज माई फील्ड फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। और इन नेक्स्ट 5 इयर्स मैं अपने आप को इतना ग्रो देखना चाहती हूँ कि मैं अपना सब फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो इतना कर लूँ कि आई विल बी हैप्पी, दैट्स ऑल। So, आप हमारी कंपनी में काम करके सीख के अपना फ्रीलांसिंग शुरू करिएगा, तो ये तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा. नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। तो सर आपका पाथ अलग है, मेरा पाथ अलग होगा। ओके. एंड अभी आपने कहा कि उसमें ज़्यादा एफर्ट मारना होता है. एफर्ट मारने से घबराती हैं? नहीं सर, एफर्ट मारने से सर, दो बच्चे हैं तो नेवर, बिल्कुल एफर्ट मारने से नहीं घबराती हूँ। मैंने मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब नहीं था कि एफर्ट लाइक अभी आप ये कह सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट उसमें खत्म हो चुका है। ओके. ठीक है। सो राइट नाउ मैंने देखा, आई गूगल्ड इट अ लॉट सिंस जब मैंने अस्टेंज ज्वाइन किया उससे 3-4 महीने सर मैंने गूगल बहुत किया, एंड आई थॉट कि मैं ऑनलाइन कुछ गेन कर लूँ। इवन आई पेड मनी टू सच वेबसाइट्स की जहाँ पे मुझे कुछ गेन करने को मिल जाए, बट स्टिल आई डिडंट गेट द रिजल्ट। सो आई थॉट द स्टेंज इज द बेस्ट टू गेन द नॉलेज। सो ऋतु से फॉर एग्जांपल दो तरह की सिचुएशन होगी. एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यू आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और एक सिचुएशन है जहाँ पे देयर इज अ टीम. इन दोनों में से कौन से वाले में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप, एंड हाउ डू यू सी कि मैं इसमें बेटर करूँगी? सर टीम में भी आई एम बेटर एंड इंडिविजुअली, क्योंकि सर इंडिविजुअली करने के लिए आई शुड बी अ पार्ट ऑफ अ टीम फर्स्ट। सो अभी मुझे एक टीम की ज़रूरत है, एंड लेटर ऑन मे बी आई डिसाइड, सो आई कैन, जब आई ग्रो इतना कि मुझे लग जाए कि हाँ नाउ आई कैन गो इंडिविजुअली, सो आई डेफिनेटली टेक द पाथ ऑफ दैट इंडिविजुअलिटी। सो इफ़ यू गेट अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट और उसके लिए आपको गूगल एड्स चलाने हैं, एंड आई एम हियर विथ यू, आप मुझे बताओ कि कितना बजट आपको चाहिए, एंड व्हाट विल बी द पर लीड कॉस्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि गूगल एड्स से हमें आ जाएगा. नोएडा और गाजियाबाद एरिया हम लोग टारगेट कर रहे हैं. अच्छा, नोएडा एंड गाजियाबाद, या सर प्रॉपर्टी किस
चीज़ मतलब कितना प्रॉपर्टी It's a स्पेस होगा 3 ये सब? BHK 4 BHK अपार्टमेंट, लग्जरियस ओके, अपार्टमेंट है, 3 BHK 4 BHK नोएडा में है, and we are targeting Noida and Ghaziabad area. So, how much budget you need for 1 month, and what will be your lead cost expected from Google ओके, Ads? ओके। सो पहले तो मैं कीवर्ड प्लानर में जाके कीवर्ड सर्च करूँगी, ठीक है? कि गाज़ियाबाद और नोएडा में क्या चल रहा है कीवर्ड्स रिगार्डिंग विद माय प्रॉपर्टी विद माय, वहाँ से मैं कुछ प्लानिंग उठाऊँगी, मतलब फॉरकास्ट उठाऊँगी अपना सीपीसी जो भी अपने बजट का है, देन आई विल डिसाइड कि मेरा बजट क्या होगा ठीक so आफ्टर दैट मैं फॉरकास्ट। क्लाइंट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ रिसर्च किया। आई यस, जस्ट नीड एन एस्टिमेट, एक नंबर। एस्टिमेट सर, यू ओके। यस, so you can सर give me गाज़ियाबाद, नोएडा, नोएडा अभी बहुत पीक पे है, सो आई टेक अराउंड 3000 4000 पर डे बजट। okay, and how many leads you are expecting? सर लीड्स 4-5 भी आ जाए तो इट विल बी गुड इनफ। तो 3000 बजट में 5 लीड, मतलब पर लीड यू आर इन्वेस्टिंग 600 रुपीस। यस सर। डोंट यू थिंक इट इज टू हाई फॉर अ लीड? सब अभी यहाँ राइट नाउ द प्रॉपर्टी प्राइस इज सो मच हाई, सो अगर 3-4 BHK है सो इट्स ओके फॉर पर लीड 4-500 or 5-600 per lead is okay. एंड व्हाट अबाउट सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स? आर यू कंफर्टेबल विद फेसबुक एड्स? सर अभी वो प्लेटफॉर्म थोड़ा कम है नॉलेज में, सो that's why it's better platform. Social Facebook is a good platform to run low budget ads. Facebook में हम कम बजट के एड्स चला सकते हैं, वी कैन गो, मतलब हमारी रीच अच्छी होगी फेसबुक से, वी कैन चूज फेसबुक आल्सो। All right. Uh, See, I can see a promising candidate here, Ritu, no doubt. बट मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ इस चीज़ से कि आपको अगर हमने हायर किया तो क्या आप इंडिपेंडेंट तरीके से कोई कैंपेन बहुत सक्सेसफुली चला पाएंगी, या फिर अगर हमारे प्रोजेक्ट्स में नीड आती है टू कन्वर्ट एनी वेबसाइट इनटू वर्डप्रेस और शॉपिफाई, तो क्या आप कंफर्टेबली कर पाएंगी? सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम कि आप मुझे ये कन्विंस करिए कि यस, आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। सर एज यू नो कि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, आई हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक, राइट? सो मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए अच्छा टाइम स्पेंड करके इस प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली लीड में कन्वर्ट करूँगी, और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे डेफिनेटली उन पे खरा उतरने की पूरी 101% कोशिश करूँगी। सो आई फील आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। मतलब मैं बहुत पंचुअल हूँ, मैं अपना पूरा जब देती हूँ तो आई गिव माई 100%। किसी भी काम में अगर मैं देती हूँ, सो मैं फोकस रहती हूँ सर, सो डेफिनेटली आई गिव माई बेस्ट to your projects. Okay. And what are your weaknesses? Sir, I'm short-tempered. Okay. So, have you experienced somewhere at workplace कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे साथ हुई, और कभी कोई ऐसा सिनेरियो आपको याद आता है? नहीं सर, मैं एक्चुअली ऑफिस में तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे साथ अब कभी ऐसा कुछ हुआ। आई वाज शॉर्ट टेम्पर्ड एक्चुअली। घर में सर थोड़ा सा बच्चे हैं तो दे आर समटाइम दे आर क्राइंग, तो मैं उस पॉइंट पे बोल रही हूँ। नथिंग लाइक Okay, द या वर्क प्लेस एरिया। ठीक है। So Ritu, any question for us? सर थैंक यू। Yes, Aditya sir, any point? नो सर। So Ritu, now as this is mock interview at Strange Academy, so हम लोग इसमें आपको कुछ फीडबैक देते हैं इंटरव्यू के एंड में। यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स। ये एक क्विक ऑब्जर्वेशन भी है, जिस तरीके से आपने कंडक्ट किया है, जिस तरीके से आपने आंसर दिए हैं,
कई बार आंसर देते समय हमें नहीं समझ में आता कि हमने कैसा आंसर दिया, सामने वाले का एक्सपीरियंस कैसा रहा। रियल इंटरव्यू में तो आपको हो सकता है इस तरह के फीडबैक भी ना मिले, because they have to judge in short time and they have multiple candidates. So इन फीडबैक्स को पॉजिटिवली लीजिए एंड मेक श्योर करिए कि हम इस पे काम करें। गुड पार्ट, आप पंक्चुअल हैं, ये आपकी सिंसियरिटी या आपके प्रेजेंस से भी दिखती है। ओके, आपने आंसर्स दिए जो आपको आ रही थी चीज़ें, उसके ऊपर आपने अच्छे से आंसर भी दिए हैं, कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज हुई हैं। जो चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली किया है, ठीक है, उन चीज़ों में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे ही मैं लाइव प्रोजेक्ट्स या लाइव चीज़ों पे एंटर कर रहा हूँ, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सो आई अंडरस्टैंड कि अभी आपका इंटर्नशिप नहीं हुआ होगा, लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं मिले होंगे, लेकिन जो आपने क्लासेस में भी एग्जीक्यूशन की हैं, वो एग्जीक्यूशन के चीज़ें आपको याद तो हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल स्टेप्स आप कई बार कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे वन थिंग, आपने बिडिंग स्ट्रैटेजीज में बताया कि मैनुअल जो है वो गूगल डिसाइड करता है। मैनुअल इसीलिए मैनुअल है क्योंकि आप डिसाइड कर रहे हैं, मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं, है ना। ऑटो इसलिए ऑटो है क्योंकि ऑटोमेटिकली गूगल डिसाइड गूगल ले रहा है, राइट। कंफ्यूज हुए। हम्म, इस तरह के जो कंफ्यूजन है, थोड़ा और हमें टाइम बिताने की ज़रूरत है। आई कैन सी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर एनी कंपनी। आपको चीज़ें याद भी रहती हैं, आप आंसर करते समय बहुत शांत सोच करके आंसर करती हैं, दैट इज़ अ गुड पार्ट। लेकिन आप बहुत जल्द ये हो जाती हैं कि मतलब आई कैन फील कि अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो चीज़ की फीलिंग बहुत जल्दी आ रही है। डर है, वो चीज़ की फीलिंग आ रही है कि कैंडिडेट जो है वो, अगर मैं इनको 1 लाख रुपए दे दूँ कि आप रन कर लो या 50,000 दे दूँ, तो घबरा जाएँगे, पता नहीं क्या मैं कर दूँगी रिज़ल्ट। सो वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। दैट यू कैन इम्प्रूव इन योर इंटर्नशिप, जब आपको प्रोजेक्ट मिलेंगी तो और ज़्यादा बढ़ेगा। आंसर करते समय जब आपको कोई टाइम दे, तो आप उस टाइम का भरपूर इस्तेमाल करें। जैसे लास्ट में मैंने आपको 2 मिनट दिए थे, इट वाज़ लाइक अ मोनोलॉग फॉर यू। तो उस टाइम पे मतलब सारे अच्छी बातें पिच कर दीजिए कि कैसे आपने क्लास में चीज़ों को सीखा, एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि मैंने इतने साल तक टेस्टिंग की है, मैंने ब्रेक लिया एंड देन मैं वापस से आई और मैंने क्लास लगाया और आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं जितना सीखी हूँ उसका 70-80% मैं आंसर कर रही हूँ। और क्लास में भी आप हमारे आकर के किसी से भी पूछ सकते हैं कि मेरे डाउट्स मैं कैसे क्लियर करती हूँ। मैं मेक श्योर करती हूँ कि आई हैव क्लियर कंसेप्ट्स, जो ये सब आपके स्ट्रेंथ है। तो अपने स्ट्रेंथ को जब भी अपॉर्च्युनिटी मिले और कोई अगर कहता है तो पूरा फुल टाइम का यूटिलाइज़ेशन करें, है ना? आप अज़्यूम कर ले रही हैं कि सामने वाले को कुछ पता होगा, ठीक है, हमें तो पता होगा एज़ वी आर फ्रॉम द अकेडमी, लेकिन जब कोई इंटरव्यू लेगा तो उसको उतने ही टाइम में आपको समझना है उसे। ठीक है, सो वहाँ पे आप टाइम लीजिए, थोड़ा और टाइम बिताइए पैनल्स के ऊपर, और थोड़ा और टाइम जैसे साइड प्रोजेक्ट्स हैं या हम लोग अगर लोकल डब्ल्यूपी पे अपनी साइट को डेवलप करते हैं, तो हमने सारा कुछ उधर में इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है कि कैसे आप प्लगइन्स को यूज़ कर रही हैं। उस पे थोड़ा और टाइम बिताइए। ऐड में अगर हमें एंटर करना है तो ऐड के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन था कि क्या आपने अभी तक कोई भी बैकलिंक ली है? नाउ यू हैव आइडिया अबाउट बैकलिंक एंड यू रियली आंसर्ड वेल फॉर डिसअबाउट टूल। दैट वाज़ रियली गुड। लेकिन जैसे ही मैं आ रहा हूँ कि क्या आपने एक भी बैकलिंक ली है, तो आपका आंसर आ जाएगा नहीं। अगर मैं आपको बोलूँगा क्या आपने एक भी ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये तो 1-2 दिन में अचीव की जा सकती हैं, है ना? ये सारे आंसर्स आपके यस में कन्वर्ट करने हैं आपको। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो उससे क्या होता है, सामने वाले में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू लर्न अगेन एट माय वर्क प्लेस, शी इज़ गोइंग टू डिलीवर, है ना? सो उसके लिए आप थोड़ा-सा टाइम और बिताइए एंड मेक श्योर करिए कि इन सब चीज़ों के आंसर आपके यस हो जाए। आई डोंट थिंक कहीं पे भी ये प्रॉब्लम आने वाली है कि मैं पहले टेस्टिंग में थी और अब मैं इसमें हूँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप इसको थोड़ा-सा इस तरीके से भी मोल्ड कर सकती हैं कि दोनों फ़ील्ड में मैं जो डेवलपमेंट देख रही थी, टेस्टिंग में काफ़ी हद तक जो टेस्टिंग का पार्ट है, वो अब मैनुअल से हट के बहुत सारा एआई बेस्ड टूल्स आ गए हैं और बहुत सारे टूल बेस्ड हो गया है टेस्टिंग। सो जो मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे टेस्टिंग के जॉब्स जो हैं वो खत्म होंगे, जो इस तरह के टेस्टिंग के थे। तो मैंने वही चूज़ किया जिसका फ्यूचर है। एज़ अ डिजिटल मार्केटर हम भी एआई टूल पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन नाउ आई एम यूजिंग एआई जस्ट एज़ अ असिस्टेंट, जो मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। सो मैं वही चीज़ चूज़ की हूँ जिसका एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो। तो मेरे पास ये चूज़ करने की अपॉर्च्युनिटी थी क्योंकि मैंने 18 मंथ्स का एक ब्रेक लिया था और मैं रीस्टार्ट कर सकती थी। सो दैट्स वन वे यू कैन टेक इट। यस आदित्य सर। यस ऋतु जी, आपने जितना सीखा है उतना आपको याद है सब कुछ, बट सिर्फ जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको करना पड़ेगा। आपका अभी वेबसाइट बिल्डिंग हुआ है तो आप डोमेन ले लीजिए, उस पे सारे टेस्टिंग करिए, देन अपने डोमेन के लिए बैकलिंक लेके देखिए। सो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं प्रैक्टिकल करने में। देन गूगल एड्स में कुछ कुछ चीज़ों में आप थोड़ा कन्फ्यूज हुए तो उसमें और पैनल देखिए उसका, उसमें देखिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कौन सा ऑप्शन का मतलब क्या है, तो आपको और अच्छे से आएगा। ओके, सो अब थोड़ा और टाइम बिताइए, बाकी आपका जो नॉलेज है वो बहुत सही है, जो आपने सीखा है वो सब कुछ आपको आ रहा है, बट सिर्फ प्रैक्टिकली करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप करिए तो आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा वो सब। Right. Thank you so ऑलराइट, much. Thank you, sir. Thank you for your feedback. थैंक यू सो मच रितु जी, ऑल द बेस्ट, डू वेल। Thank मिलते you, हैं हम। sir. Thank you, sir. Thank you so much. बाय बाय। बाय।